Good morning, students. Today I am going to teach chapter 3, the Northern and Coastal Plains, from your Social Studies book of class 3. Chapter name you can look at in the screen, okay? The Northern and Coastal Plains. Its Hindi meaning is Utri or तटवर्ती मैदान. Students, before we go to the text, let us solve the question given in the get set go. Question number A. Rearrange the letters to get the names of a few cities located in the plains. Write the names on the blanks. So students, letters are given in this order. You have to arrange and make the city's name. Okay, the first name is Mumbai, second name Guwahati, third name Delhi, and fourth Chennai, and fifth Patna, and sixth Kolkata. The students, you write down in your book. Okay. Question number B. Which of these cities are located on the coast? Which of these cities are located on the coast? Coast, that means समुद्र के किनारे. Okay, या नदी के किनारे. Okay, so here we can name Kolkata. Okay, Kolkata is located in the coast of West Bengal, coast of Bay of Bengal. Okay, not West Bengal, Bay of Bengal. It is located near the Hooghly or Ganga river. Then Patna we can say, and Guwahati. Okay, so now students, let us see the text. A flat and level land is called a plain. So students, you have to remember a lot of things in the lesson. Okay, so you have to pay attention and remember the points. So remember, what is plain? Plain, flat and level land is called plain. Okay, the plains of India includes भारत के मैदानी इलाका या मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी क्षेत्राएँ आती हैं, कौन कौन सी इलाकाएँ आती हैं? उनमें है नॉर्थन प्लेन एंड कोस्टल प्लेन्स. ओके, भारत के मैदानी क्षेत्र में उत्तरी मैदानी भाग और तटवर्ती मैदान के भाग आते हैं. ओके, now let us see the northern plains, उत्तरी मैदानी भाग. The northern plain lies towards the south of the Himalaya. They stretch from Punjab to Assam. So students, you can look at the map in the next page. See, south of Himalaya, south of Himalaya. Okay, Amritsar, here is written Amritsar, so it is Punjab. Okay, and Guwahati, here is written Guwahati, it is Assam. So its northern plains stretches from Punjab to Assam. Okay, many rivers which originates in Himalaya flow through the northern plains. So students, बहुत सारी नदियाँ जो कि हिमालय पर्वत से निकलती हैं, वो नदियाँ इसी मैदानी इलाका से होकर के बहती हैं. ओके, नॉर्थन प्लेन्स से होकर के बहती हैं. सो वंस अगेन यू कैन सी ऑल दिस ग्रीन एरियाज आर कॉल्ड नॉर्थन प्लेन्स. ओके, and you can see here the rivers names are been given: Ganga, Yamuna, Brahmaputra. Okay, Satluj, Ravi, all these rivers flow through
these plains. Okay, these rivers carry water throughout the year. और इन नदियों में बहुत पानी भरा रहता है, साल भर पानी भरा रहता है. Okay, they also bring with them broken pieces of rocks, sand and silt. और इन नदियों में पानी के साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, बालू और खाद बह करके आती हैं. सिल्ट मीन्स खाद. ओके, द फाइन सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर इज कॉल्ड एलुवियम. जो खाद मैदान नदियों के किनारे इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है, उसको एलुवियम या जलोढ़ कहा जाता है. ओके, एलुवियम मीन्स जलोढ़ मिट्टी. इट इज़ फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर क्रॉप्स. और ये जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है. द एरिया वाटर बाय अ रिवर and its tributaries is called its basin. So students, basin, tributaries that means सहायक नदी. ओके, और बेसिन का मतलब होता है वो इलाके जिसमें से नदियाँ बहती हैं. ओके, नदियाँ बहती है, द्रोणी जिसको कहते हैं. ओके, 3 rivers सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र and their tributaries have formed the northern plains. तो 3 बड़ी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो है सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनके सहायक नदियाँ ये मिल करके नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थ की उत्तरी मैदान की इलाका बनाती है. ओके, नाउ लेट अस सी द सतलज रिवर बेसिन. सतलज रिवर बेसिन, सतलज रिवर द्रोणी. ओके, रिवर सतलज ओरिजिनेट्स इन तिब्बत. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, सतलज नदी तिब्बत से निकलती है. ओके, ब्यास नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है. ओके, इट्स मेन ट्रिब्यूटरी पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ द सतलज रिवर बेसिन. और सतलज रिवर बेसिन के अंतर्गत पंजाब शहर और हरियाणा शहर ये आती हैं. ओके, इन दोनों शहरों में तब सतलज नदी के पानी पर्याप्त रूप में मिलते हैं. इन दोनों शहरों के इलाकों में इन नदियों के पानी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं. ओके, द भाखरा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलज जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन. और इसी सतलज नदी में भाखरा डैम बनाया गया है और इस भाखरा डैम के पानी से बिजली उत्पादन की जाती है. ओके, और इस डैम के पानी उपयोग सिंचाई के लिए भी की जाती है. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट गंगा रिवर बेसिन. गंगा नदी द्रोणी. रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से. ओके, और इसकी मुख्य सहायक नदी है यमुना. द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज
फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और गंगा नदी और उसके सहायक नदी किन किन शहरों से होकर के बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन शहरों से होकर के बहती है। इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। और वेस्ट बंगाल में गंगा नदी 2 नदियों में बंटती है। ओके, स्प्लिट मीन्स बट जाना। ओके, 2 नदियों में बट जाती है। 1 ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश एंड इज कॉल्ड पद्मा। और जो नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ इसी गंगा नदी का नाम है पद्मा। ओके, और जो वेस्ट बंगाल की ओर बहती है उसको हुगली कहा जाता है। ओके, सो रिमेंबर, गंगा नदी का नाम 2 नाम है। ओके, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और वेस्ट बंगाल में हुगली कहा जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत where it's called तस्पो। तो ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। ओके, और तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? तसंगपो। ओके, इट enters India through अरुणाचल प्रदेश and flows through असम। ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और असम राज्य होकर के बहती है। ओके, और वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ओके, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत में वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और असम राज्य में हो करके वो बांग्लादेश में चली जाती है। ओके, तो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड before falling into the Bay of Bengal. This is the Sundarban Delta. So students, ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दोनों नदी मिल करके सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ओके, सबसे बड़ा नदियों का मुहाना या एरिया का निर्माण करती है। ओके, और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबान डेल्टा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you understood the chapter till here. The next part we will see in the next video. Till then you keep on your studies. Okay, thank you.